Good evening, students. Today our topic is respiration in bacteria. Today I continue chapter number 2, that is from class 11th. Fine. And on the basis of mode of respiration, bacteria are categorized into 4 parts. First is obligate aerobes. Fine. In the presence of oxygen, they respire. Bacteria respires. Fine. And the example of this is Bacillus subtilis. Second is facultative anaerobes. Fine. In this case, if there is presence of oxygen, only that bacteria can survive. Which one? Facultative anaerobe. Next is obligate. Sorry, I forgot the example of facultative anaerobes. Fine. The example of facultative anaerobes is Clostridium tetani. Third is obligate anaerobes. In this case, if there is a presence of oxygen, then definitely bacteria can't survive. Bacteria can't respire. And they respire anaerobically. An example of this is Clostridium botulinum. Fine. Next is facultative aerobes. In this case, bacteria respires in the presence of oxygen, and in the absence of oxygen they can't survive. Fine. And the example of this is Rhodo-Pseudomonas species. Example of this is Rhodo-Pseudomonas species. Fine. Next is nutrition in bacteria. On the basis of nutrition, bacteria categorized into 2 parts: autotrophic bacteria and heterotrophic bacteria. Fine. In case of autotrophic bacteria, they use inorganic substance and convert it into organic substance. Fine. First is photoautotrophic. These do photosynthesis, but these are anoxygenic. Fine. They don't use oxygen to perform photosynthesis. वैसे तो होता ही नहीं है. Next is photosynthetic pigment. These pigments perform photosynthesis, fine, by trapping solar energy, and these are present in thylakoids, and the name of these are bacteriochlorophyll and bacteria pyophytin. Fine. They use solar energy and convert inorganic substance into organic. Fine. See the reaction. Next is example: purple bacteria, green sulfur bacteria. Fine. Next is chemosynthetic bacteria. In this case, they convert or they oxidized inorganic material into organic and release energy. Example of this type of bacteria are nitrifying bacteria, sulfur oxidizing bacteria. Nitrifying bacteria and sulfur oxidizing bacteria. Next category is, we have completed autotrophic bacteria. Fine. Next is heterotrophic bacteria. These depend on external source. Fine. They depend on organic things to get energy, like saprophytic bacteria, symbiotic bacteria, parasitic bacteria. In case of saprophytic bacteria, they use dead organic matter, for example Pseudomonas bacteria, and get energy. Second is symbiotic bacteria. They show beneficial association, for example nitrogen fixing bacteria, enteric bacteria, and E. coli. Fine. They have mutual bonding. Next is parasitic bacteria. In this case, they cause disease. Generally, they cause disease. These are known as pathogens like Vibrio cholerae and Clostridium tetani. Fine. देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. उसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, सेकेंड चैप्टर को, क्लास 11 से. रेस्पिरेशन की जितनी भी टाइप्स हैं उसके बेसिस पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ऑब्लिगेट एरोब्स, सेकेंड इज फैकल्टेटिव anaerobes, थर्ड इज ऑब्लिगेट anaerobes, फैकल्टेटिव एरोब्स. बच्चे कंफ्यूज हो जाते. देखो एरोब्स का मतलब क्या है? जहां भी एरोब्स आ गया इसका मतलब क्या है?
वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन उसको चाहिए तभी उसको एनर्जी मिलेगा, तभी वो अपना वर्क कर पाएगा। एनारोबिक का मतलब क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट जो है वो क्या है, ऑब्लिगेट एरोब्स। इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन होगी ना तभी वो काम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। एग्जाम्पल क्या है इसका, बेसिलस सबटिलिस। सेकेंड इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसके केस में क्या है, ये भी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ही ये क्या करेगा, काम करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। एग्जाम्पल है इसका क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक। ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स इसमें क्या है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी ना इसके अंदर तो ये क्या करेगा, किल हो जाएगा, ये काम करेगा ही नहीं। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, एरोबिकली मतलब काम करेगा। ठीक है। और जनरली ये क्या करता है, एनारोबिकली में नहीं कर पाता। देखो ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, जो ट्रू होता है, ऑब्लिगेट एरोब्स जहां आ जाए तो इसका मतलब वो वही काम करेगा। ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है, या एरोब्स का मतलब क्या है कि एनारोब्स है तो वो इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा, लेकिन मजबूरी में वो क्या कर सकता है, दूसरे फंक्शन का भी यूज कर सकता है। अब अगर मान लो फैकल्टेटिव एरोब्स की मैं बात करूं तो एरोब्स आ गया फैकल्टेटिव के साथ, ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब क्या होता है कि वो झूठ मूठ का है, यानी कि वो अपोजिट चलेगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करेगा, लेकिन उसको जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज भी कर सकता है। और एनारोब्स के केस में भी यही होगा। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। दो तरह का है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेगा। ठीक है। जैसे क्या करता है प्लांट, क्या करता है, CO2 लेगा, उसको फिक्स करेगा, उसको रिडक्शन करेगा, तब जाके वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, स्टार्च की फॉर्मेशन करेगा। किस किस का यूज करेगा, वाटर का करेगा, मिनरल्स का यूज करेगा। फाइन। सनलाइट का क्या करेगा, ट्रैपिंग करेगा उसका। ठीक है। तो तब जाके क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड बनेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक फूड में। ठीक। इसका दो कैटेगरीज हैं इसकी। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है। बट अनऑक्सीजेनिक, इसमें ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और इसके केस में क्या होता है, जैसे प्लांट के केस में कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ठीक है। इसके केस में क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये थैलाकॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक। और इनके अंदर क्या होता है, दो तरह के पिगमेंट होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो पेयोफाइटिन। ये ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में या स्टार्च में। ठीक। एग्जाम्पल है इसकी, ये देख लेना रिएक्शन, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके केस में क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये भी यूज करता है। ठीक है। लेकिन इनका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, जिससे उसको ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा और एनर्जी भी मिलेगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल सोर्स पर। अब हम खाना तो हम खुद नहीं बना सकते ना, कोई वेजिटेरियन है तो उसको वेज फूड चाहिए, कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेज चाहिए। ठीक है। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमारा क्या होता, गुजारा नहीं होता, क्योंकि हमारा इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनिमल्स नहीं होते तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है। ठीक है। नेक्स्ट है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। इसके केस में क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है, इसको खाता है और एनर्जी मिलती है इसको। एग्जाम्पल है इसका सूडोमोनास, सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब मैं बैठी हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। ठीक है। मैंने क्या कहा, मेरे पास पिज्जा है, तेरे पास बर्गर है, दोनों शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इनमें। ठीक है। या मेरे पास वाटर है, उसके पास फूड है, तो हम दोनों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली। ठीक। तो इसमें भी क्या है, बेनिफिशियल एसोसिएशन, दोनों का फायदा होगा। अब इसमें क्या है, सिम्बायोटिक में फायदे वाली बात आएगी। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंटेरिक बैक्टीरिया एंड ई कोलाई। थर्ड इज पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये मोस्टली डिजीज ही कोज करते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। एग्जाम्पल इसके विब्रियो कोलरे, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया
वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।